اس نے کہا، آج پہلی بار میرا دماغ میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ خلیفہ کے اس پیغام کو نظر انداز کر دیں؟ اس کے نائب سالار الناصر نے کہا، میں اسی کوشش میں مصروف ہوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن الزام کی نوعیت دیکھو جو مجھ پر عائد کیا گیا ہے۔ میں نے اس کے حرم کی ایک لڑکی اغوا کرائی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے۔ اس نے میری توہین میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پیغام بلکہ دھمکی قاصد کی زبانی بھیجی ہے۔ وہ مجھے بلا لیتا، میرے ساتھ براہ راست بات کرتا۔ بہاؤالدین شداد نے کہا، میں پھر بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کیجیے۔ میں سوچ یہ رہا ہوں کہ کیا واقعی حرم سے کوئی لڑکی اغوا ہوئی ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا، یہ جھوٹ معلوم ہوتا ہے۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے خطبے میں سے اس کا نام نکلوا دیا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے مجھ پر یہ الزام لگا کر کہ میں نے اس کے حرم کی ایک لڑکی اغوا کرائی ہے، انتقام لینے کی کوشش کی ہے۔ سلطان ایوبی نے عیسیٰ الحقاری فقیہ سے کہا، ایک حکم نامہ مصر کی تمام مسجدوں کے نام جاری کر دو کہ آئندہ کسی مسجد میں خطبے میں خلیفہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ الناصر نے کہا، آپ اس کے ہاں چلے جائیں اور اس سے بات کریں۔ اسے صاف الفاظ میں بتا دیں کہ خلیفہ قوم کی عزت کا نشان ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم نہیں چل سکتا، خصوصاً اس صورتحال میں جب حالات جنگی ہیں اور دشمن کا خطرہ باہر سے بھی ہے اور اندر سے بھی موجود ہے۔ میں تو یہاں تک مشورہ دوں گا کہ اس کے محافظ دستے کی نفری کم کر دیں، سوڈانی حبشیوں کی جگہ مصری دستہ رکھیں اور اس کے محل کے اخراجات کم کر دیں۔ میں اس کے نتائج سے آگاہ ہوں، ہمیں مقابلہ کرنا ہی پڑے گا، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ اپنے اللہ پر بھروسہ کیا۔ سلطان ایوبی نے کہا، خدائے ذوالجلال مجھے اس ذلت سے بھی بچا لے گا۔ دربان اندر آیا، سب نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، صحرا کے گشتی دستے کا کماندار اپنے 3 سپاہیوں کے ساتھ آیا ہے، وہ سوڈانیوں کی لاشیں لائے ہیں۔ سب نے دربان کی مداخلت کو اچھی نظر سے نہ دیکھا۔ اس وقت سلطان ایوبی بڑے ہی اہم اور خفیہ اجلاس میں مصروف تھا، لیکن سلطان نے دربان سے کہا، انہیں اندر بھیج دو۔ سلطان ایوبی نے اپنے دربان سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی اسے کوئی ملنے آئے وہ اسے اطلاع دے، اور اگر رات اسے جگانے کی ضرورت محسوس ہو تو فوراً جگا لے۔ سلطان کوئی بات اور کوئی ملاقات التوا میں نہیں ڈالا کرتا تھا۔ عہدیدار اندر آیا، اس کا چہرہ گرد سے اٹا ہوا اور تھکا تھکا نظر آتا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے بٹھایا اور دربان سے کہا کہ اس کے لیے پینے کے لیے کچھ لاؤ۔ عہدیدار نے سلطان کو بتایا کہ اس کے گشتی سنتریوں نے 4 سوڈانی حبشیوں سے ایک مغویہ لڑکی کو چھڑانے کی کوشش میں 2 کو تیروں سے مار ڈالا ہے اور وہ لڑکی اٹھا کر بھاگ گئے ہیں۔ عہدیدار نے بتایا کہ سنتریوں کے بیان کے مطابق لڑکی خانہ بدوش یا کسی عام گھرانے کی نہیں تھی، وہ بہت ہی امیر لگتی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ خلیفہ کی ملکیت ہے۔ معلوم ہوتا ہے، سلطان ایوبی نے کہا، خدائے ذوالجلال میری مدد کو آ گیا ہے۔ وہ باہر نکل گئے۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے سب حاکم اس کے پیچھے چلے گئے۔ باہر زمین پر 2 لاشیں پڑی تھیں۔ ایک لاش پیٹ کے بل تھی، اس کی پیٹھ میں تیر اترا ہوا تھا۔ دوسری لاش کی گردن میں تیر پیوست تھا۔ پاس 3 سپاہی کھڑے تھے۔ انہوں نے امیر مصر کو، جو ان کا سالار اعلیٰ بھی تھا، شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ فوجی انداز سے سلام کر کے پرے ہٹ گیا۔ سلطان ایوبی نے اس کے سلام کا صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ ان سے ہاتھ ملایا اور کہا، یہ شکار کہاں سے مار لائے ہو مومنو؟ اس سنتری نے جس نے چٹان سے تیر چلا کر 2 آدمیوں کو مارا تھا، سلطان ایوبی کو سارا واقعہ پوری تفصیل سے سنا دیا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی خلیفہ کی ہی داشتہ ہو؟ سلطان ایوبی نے اپنے مشیروں سے پوچھا۔ معلوم یہی ہوتا ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ ان کے خنجر دیکھیے۔ اس نے 2 خنجر سلطان ایوبی کو دکھائے۔ جس وقت سپاہی واقعہ سنا رہا تھا، علی بن سفیان لاشوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ انہوں نے سوڈان کا قبائلی لباس پہن رکھا تھا۔ کپڑوں کے اندر ان کے کمربند تھے، جن کے ساتھ ایک خنجر تھا۔ یہ خلیفہ کی حفاظتی دستے کے خاص ساخت کے خنجر تھے۔ ان کے دستوں پر قصر خلافت کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ علی بن سفیان نے کہا، اگر انہوں نے یہ خنجر چوری نہیں کیے تو یہ دونوں قصر خلافت کے حفاظتی دستے کے سپاہی ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لڑکی وہی ہے جو خلیفہ کے حرم سے اغوا ہوئی ہے اور اغوا کرنے والا خلیفہ کے محافظوں میں سے ہے۔ لاشیں اٹھواؤ اور خلیفہ کے پاس لے چلو، سلطان ایوبی نے کہا۔ پہلے یقین کر لیا جائے کہ یہ واقعی خلیفہ کے محافظوں میں سے ہیں، علی بن سفیان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ علی بن سفیان کے ساتھ قصر خلافت کا ایک کماندار آ گیا۔ اسے دونوں لاشیں دکھائی گئیں۔ اس نے فوراً پہچان لیا اور کہا، یہ دونوں محافظ دستے کے سپاہی ہیں، گزشتہ 3 روز سے چھٹی پر تھے، ان کی چھٹی 7 دن رہتی تھی۔
कोई और सिपाही भी छुट्टी पर है? सुल्तान अयूबी ने पूछा। 2 और हैं। क्या वो उनके साथ छुट्टी पर गए थे? इकट्ठे गए थे, कमांडर ने जवाब दिया और एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, ये सूडान के ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जो खूनखारी में मशहूर है। इनमें फ़िरौनों के वक्त के कुछ रस्में चली आ रही हैं। ये कबीला हर 3 साल बाद एक जश्न मनाता है। ये एक मेला होता है जो 3 दिन और 3 रातें रहता है। दिन ऐसे मुकर्रर करते हैं कि चौथी रात चाँद पूरा होता है। मेले में वो लोग भी जाते हैं जिनका इस कबीले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो सिर्फ़ अयाशी के लिए जाते हैं। मेले में लड़कियों की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए बाकायदा मंडी लगती है। इस मेले से 1 माह पहले ही इर्द गिर्द बल्कि काहिरा तक के लोग जिनकी बेटियां जवान हो गई हैं होशियार और चौकस हो जाते हैं। वो लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते। इन दिनों खाना बदोश भी इस इलाके से दूर चले जाते हैं। लड़कियां अगवा होती हैं और इस मेले में फ़रोख्त हो जाती हैं। ये चारों सूडानी इस मेले के लिए छुट्टी पर गए थे। मेला 3 रोज़ बाद शुरू हो रहा है। क्या उनके मुतालिक ये कहा जा सकता है कि खलीफा के हरम की लड़की उन्होंने अगवा की होगी? अली बिन सुफियान ने पूछा। मैं यकीन से नहीं कह सकता, कमांडर ने जवाब दिया। ये कह सकता हूँ कि इन दिनों में इस कबीले के लोग जान का ख़तरा मोल लेकर भी लड़कियां अगवा करने की कोशिश करते हैं और ये खूनखार इतने हैं कि अगर किसी लड़की के वारिस मेले में चले जाएं और अपनी लड़की लेने की कोशिश करें तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। लड़कियों के गाहकों में मिस्र के अमीर, वज़ीर और हाकिम भी होते हैं। मेले में ऐसे आर्जी कोहबाखाने भी खुल जाते हैं जहाँ जुआ, शराब और औरत के शिद्दाई दौलत लुटाते हैं। इस जश्न की आखिरी रात बड़ी पुरस्रार होती है। किसी खुफिया जगह एक नौजवान और गैर मामूली तौर पर हसीन लड़की को कुर्बान किया जाता है। ये किसी को भी मालूम नहीं कि लड़की को कहाँ और किस तरह कुर्बान किया जाता है। ये काम उनका एक मजहबी पेशवा, जिसे हबशी खुदा भी कहते हैं, करता है। इसके साथ बहुत थोड़े से ख़ास आदमी और 4-5 लड़कियां होती हैं। लोगों को लड़की का कटा हुआ सर और खून दिखाया जाता है, जिसे देखकर ये कबीला पागलों की तरह नाश्ता और शराब पीता है। खलीफा ने मुहाफ़िज़ दस्ते के नाक में दम कर रखा था। तमाम तर मुहाफ़िज़ दस्ता धूप में खड़ा था। सूरज गुरूब होने में कुछ देर बाकी थी। इस दस्ते को सुबह खड़ा किया गया था। कमांडरों और ओहदेदारों को भी खाना खाने की इजाज़त दी गई थी, न पानी पीने की। रजब बार बार आता और ऐलान करता था कि लड़की मुहाफ़िज़ों की मदद के बग़ैर अगवा नहीं की जा सकती थी। जिस किसी ने अगवा में मदद दी है वो सामने आ जाए, वरना तुम्हें यहीं भूखा और प्यासा मार दिया जाएगा। अगर लड़की ख़ुद बाहर गई होती तो तुम में से किसी न किसी ने ज़रूर देखी होती। इन धमकियों का कुछ असर नहीं हो रहा था। सब कहते थे कि वो बेगुनाह है। खलीफा रजब को टिकने नहीं दे रहा था। उसने रजब से कहा था, मुझे लड़की का अफसोस नहीं, परेशानी ये है कि जो इतने कड़े पहरे से लड़की को अगवा कर सकते हैं वो मुझे भी कत्ल कर सकते हैं। मुझे ये सबूत चाहिए कि लड़की को सलाहुद्दीन अयूबी ने अगवा कराया है। रजब ने ही अगवा का बुहतान सुल्तान अयूबी के सर थोपा था, मगर खलीफा उसे कह रहा था कि सबूत लाओ। रजब सबूत कहाँ से लाता, उसकी जान पर बन गई थी। वो एक बार फिर मुहाफ़िज़ दस्ते के सामने गया। गुस्से से वो बावला हुआ जा रहा था। वो कई बार दी हुई धमकी एक बार फिर देने ही लगा था कि दरवाज़े पर खड़े संतरियों ने दरवाज़े खोल दिए और ऐलान किया, अमीर मिस्र तशरीफ़ ला रहे हैं। बड़े दरवाज़े में सुल्तान अयूबी का घोड़ा दाखिल हुआ। उसके आगे 2 मुहाफ़िज़ सवारों के घोड़े थे। 8 सवार पीछे थे, एक दाएँ और बाएँ था। उनके पीछे सुल्तान अयूबी के हाकिम और मुशीर थे। इनमें अली बिन सुफियान भी था। रजब ने खलीफा को इत्तला भेज दी कि बाहर सलाहुद्दीन अयूबी आया है। सब ने देखा कि सुल्तान अयूबी के इस जलूस के पीछे 4 पहियों वाली एक गाड़ी थी, जिसके आगे 2 घोड़े जुते हुए थे। गाड़ी पर 2 लाशें पड़ी थीं, एक सीधी और दूसरी उल्टी। तीर अभी तक लाशों में उतरे हुए थे। इन लाशों के साथ वो 3 शुतर सवार थे जिन्होंने इन हबशियों को मारा था। खलीफा बाहर आ गया। सुल्तान अयूबी उसके तमाम सवार घोड़ों से उतरे। सुल्तान अयूबी ने इसी एहतराम से खलीफा को सलाम किया जिस एहतराम का वो हकदार था। झुक कर उससे मुसाफा किया और हाथ चूमा। मुझे आपका पैगाम मिल गया था, मैं आपके हरम की लड़की वापस कर दूं। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं आपके 2 मुहाफ़िज़ों की लाशें लाया हूं। ये लाशें मुझे बेगुनाह साबित करेंगी और मैं हुजूर अक़दस में ये गुजारिश करना ज़रूरी समझता हूं कि सलाहुद्दीन अयूबी आपकी फ़ौज का सिपाही नहीं, जिस खिलाफत की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं वो उसका भेजा हुआ है। खलीफा ने सलाहुद्दीन अयूबी के तेवर भांप लिए।
इस फातमी खलीफा का ज़मीर गुनाहों के बोझ से कराह रहा था। वो सुल्तान अयूबी की बारोब और पुरजलाल शख्सियत का सामना करने के काबिल नहीं था। उसने सुल्तान अयूबी के कंधे पर हाथ रख कर कहा, मैं तुम्हें अपने बेटों से ज़्यादा अजीज़ समझता हूँ। सलाहुद्दीन अयूबी, अंदर आओ, मेरी हैसियत अभी मुल्ज़िम की है। सुल्तान अयूबी ने कहा, मुझे अभी सफाई पेश करनी है कि मैं अगवा का मुल्ज़िम नहीं हूँ। खुदाए ज़ुल जलाल ने मेरी मदद फरमाई है और 2 लाशें भेजी हैं। ये लाशें बोलेंगी नहीं। इनकी खामोशी और इनमें उतरे हुए तीर गवाही देंगे कि सलाहुद्दीन अयूबी इस जुर्म का मुजरिम नहीं जो कसर खिलाफत में सरजद हुआ है। मैं जब तक अपने आप को बेगुनाह साबित न कर लूँगा अंदर नहीं जाऊँगा। वो लाशों की तरफ चल पड़ा। खलीफा खिंचा हुआ उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी दूर 400-450 नफरी का मुहाफ़िज़ दस्ता खड़ा था। सुल्तान अयूबी ने लाशें उठवाकर उस दस्ते के सामने रख दी और बुलंद आवाज़ से कहा, 8 सिपाही आगे आओ और लाशों को देख कर बताओ कि ये कौन है। पहले कमांडर और ओहदेदार आए। उन्होंने लाशें देखकर उनके नाम बताए और कहा, ये हमारे दस्ते के सिपाही थे। इनके बाद 8 सिपाही आए। उन्होंने भी लाशों को देखकर कहा, ये उनके साथी थे। 8 और सिपाही आए और फिर 8 और आए। इस तरह 8 सिपाही आते रहे और बताते रहे कि ये लाशें उनके फ़िलाँ साथियों की हैं। सलाहुद्दीन अयूबी, खलीफा ने कहा, मैंने मान लिया है कि ये लाशें कसर खिलाफत के 2 मुहावज़ों की हैं। मैं इससे आगे सुनना चाहता हूँ कि इन्हें किसने हलाक किया है। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस गश्ती संतरी से जिसने उन्हें हलाक किया था कहा कि अपना बयान दोहराए। उसने सारा वाक़या खलीफा को सुना दिया। वो ख़त्म कर चुका तो सुल्तान अयूबी ने खलीफा से कहा, लड़की मेरे पास नहीं लाई गई, वो सूडानी हबशियों के मेले में फ़रोख्त होने के लिए गई है। खलीफा खसियाना हुआ जा रहा था। उसने सुल्तान अयूबी से कहा कि वो अंदर चले। सुल्तान अयूबी ने अंदर जाने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इस लड़की को ज़िंदा या मुर्दा बरामद करके आपके हुजूर हाज़िरी दूँगा। अभी मैं इतना ही कहूँगा कि हरम की एक ऐसी लड़की का अगवा जो तोहफ़े के तौर पर आई थी और जो आपकी मनकूहा बीवी नहीं दाश्ता थी, मेरे लिए ज़रा भर अहमियत नहीं रखती। खुदावंद ताला ने मुझे इससे अहम फ़राइज़ सौंपे हैं। मेरी परेशानी ये नहीं कि एक लड़की अगवा हो गई है। खलीफा ने कहा, असल परेशानी ये है कि इस तरह लड़कियाँ अगवा होने लगीं तो मुल्क में कानून का क्या हशर होगा। और मेरी परेशानी ये है कि सल्तनत इस्लामिया अगवा हो रही है। सुल्तान अयूबी ने कहा, आप ज़्यादा परेशान न हों, मेरा शोबा सुराग रसानी लड़की को बरामद करने की पूरी कोशिश करेगा। खलीफा सुल्तान अयूबी को ज़रा परे ले गया और कहा, सलाहुद्दीन, मैं एक अरसे से देख रहा हूँ कि तुम मुझसे खिंचे रहते हो। मैं नजमुद्दीन अयूब, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के वालिद मोहतरम का बहुत एहतराम करता हूँ, मगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा भर एहतराम नहीं है। और मुझे आज बताया गया है कि जामे मस्जिद के ख़तीब अमीर अल आलिम ने यह गुस्ताखी की है कि खुतबे से मेरा नाम हटा दिया है। मुझे रजब ने बताया है कि मैं इसे इस गुस्ताखी की सज़ा दे सकता हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि इसने तुम्हारी शह पर तो ऐसा नहीं किया। मेरी शह पर नहीं, मेरे हुक्म पर। उसने खलीफा का नाम खुतबा से हज़फ किया। सुल्तान अयूबी ने कहा, सिर्फ़ आपका नाम नहीं बल्कि हर उस खलीफा का नाम खुतबे से हटा दिया गया है जो आपके बाद आएगा और जो इसके बाद आएगा। क्या ये हुक्म फ़ातमी खिलाफत को कमज़ोर करने के लिए जारी किया गया? खलीफा ने पूछा, मुझे शक है कि यहाँ अब्बासी खिलाफत लाई जा रही है। हुजूर बहुत बूढ़े हो गए हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, कुरान ने शराब को इसीलिए हराम कहा है कि इससे दिमाग माऊफ हो जाता है। सुल्तान ने ज़रा सोच कर कहा, मैंने फ़ैसला किया है कि कल से आपके मुहाफ़िज़ दस्ते में रद्द-बदल होगा और रजब को मैं वापस लेकर आपको नया कमांडर दूंगा। लेकिन मैं रजब को यहाँ रखना चाहता हूँ। खलीफा ने कहा, मैं हुजूर से दरख्वास्त करता हूँ कि फ़ौजी मामलात में दखल देने की कोशिश ना करें। सुल्तान अयूबी ने कहा और अली बिन सुफियान की तरफ मुतवज्जे हुआ जो 5 हबशी मुहाफ़िज़ों को साथ लिए आ रहा था। ये पाँचों उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, मैंने इस दस्ते से मुखातिब होकर कहा कि इस कबीले के कोई आदमी यहाँ हूँ तो बाहर आ जाएं। ये 5 सफ़ों से बाहर आ गए हैं। इनके मुतालिक मुझे उनके कमांडर ने बताया कि परसों से छुट्टी पर जा रहे थे। मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। लड़की के अगवा में इनका हाथ हो सकता है। सलाहुद्दीन अयूबी ने रजब को बुलाकर कहा, कल यहाँ दूसरा कमांडर आ रहा है, आप मेरे पास आ जाएंगे। मैं आपको मंजनीकों की कमान देना चाहता हूँ। रजब के चेहरे का रंग बदल गया। आज की किस्त इख्तिताम को पहुँची। अगली अक़सात के लिए देखते रहिए हमारा चैनल दास्तान सराय। शुक्रिया।